Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about RNA. As you know that nucleic acids are of two types, deoxyribonucleic acids and ribonucleic acids. Today we will discuss about the ribonucleic acids, the chemical nature and structure of the ribonucleic acids abbreviated as RNA. Jones in 1920 isolated the RNA from the yeast cells, and in early 1940s it was believed that RNA is a normal constituent of the animal, plant and bacterial cells. RNA is present as a single-stranded molecule in all the living cells, and it differs from the DNA in two main points. Number one is the sugar ribose is present instead of deoxyribose sugar, and the pyrimidine uracil is present instead of thymine in the RNA. It has also been explained that RNA is the intermediate between the information in the DNA in the nucleus and the protein synthesis in the cytoplasm, and this RNA is produced in the nucleus. RNA is the second category of the nucleic acids, which are known as the ribonucleic acids, and the building blocks of the ribonucleic acids are also nucleotides as in DNA, and these are linked into the polynucleotide chains. However, this RNA it differs from the DNA in some points. Earlier हमने 2 points पढ़े, इसके अलावा हम देखते हैं और कौन से हैं. नंबर 1 point के जो है वो RNA में ribose sugar present है instead of the deoxyribose. Ribose sugar is that in which at the carbon number 2 of this hydroxyl group is present, while in DNA at this position one oxygen is missing, so that's known as deoxyribose. तो RNA के अंदर ये राइबोस शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है. सेकेंड डिफरेंस जो हमने पढ़ा था वो ये कि इसमें RNA के अंदर जो है वो थायमीन पायरिमिडीन बेस की जगह पर जो है वो यूरासिल नाइट्रोजन बेस जो है वो प्रेजेंट होती है. फिर इसी तरह से जो है जो इसमें nucleotides हैं which are present in the RNA, these are 4 as in the DNA. Now we see which are the nucleotides. Number 1 adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, cytidine monophosphate and uridine monophosphate. DNA में uridine की जगह पर जो है वो thymidine जो है monophosphate present है. And these individual nucleotides they are linked together to form the polynucleotide chain through the 3' and 5' phosphodiester bonds as in DNA. Then DNA मॉलिक्यूल जो है वो हमने पढ़ा कि वो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, वाइल RNA जो है ये मोस्ट केसेस में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये मॉलिक्यूल जो है इसकी फोल्ड बैक साइड पर जो है फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं बेस पेयरिंग की वजह से, और जिसकी वजह से जो है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आती है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आती है उन फोल्डिंग की वजह से. और कुछ एनिमल्स में जहाँ पर RNA जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वहाँ भी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है. ये थे 4 मेजर जो है वो डिफरेंसेस फ्रॉम द DNA मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द RNA मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट इज़ द लोकेशन एंड साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, कि RNA जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसकी सिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है. तो मैमेलियन टिश्यू जो है उनमें तकरीबन जो है वो 10% ऑफ RNA जो है इट इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, एंड आउट ऑफ दिस जो है वो मॉलिक्यूलर RNA 20% जो है वो न्यूक्लियोलस में कंसंट्रेट होता है, प्रेजेंट होता है, एंड द रिमेनिंग जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लास्ट
एसोसिएटेड विद द क्रोमैटिन मटीरियल एंड इन द राइबोसोम्स, यानी कि इसमें से 20% जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में, और बाकी जो 80% है वो न्यूक्लियोप्लास्ट में और जो है वो राइबोसोम्स में जो है प्रेजेंट होता है. And the presence of the ribonucleic acid, it was confirmed by performing a number of experiments. और उसमें जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसको यूज़ किया गया था. और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है व्हेन इट वाज इंजेक्टेड इनटू एन एनिमल एंड देन आफ्टर इंजेक्शन द लिवर ऑफ दैट एनिमल वाज रिमूव्ड, और उसके बाद जो है वो फ्रैक्शनेशन की गई इसकी, मीन्स के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सेल के अंदर उनको सेपरेट किया गया. फ्रैक्शनेशन मेथड इज़ अ सेपरेशन मेथड ऑफ द ऑर्गेनेलिस. तो इसमें जो है वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम्स और सेल सैप जो है उसको सेपरेट किया गया, और उसके बाद जो है इनको जो है वो स्टडी किया गया. तो इट वाज स्टडीड कि आरएनए फ्रैक्शन जो है फ्रॉम दो स्ट्रक्चर्स व्हेन इट वाज स्टडीड फॉर रेडियो एक्टिविटी, तो ये देखा गया कि मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियोलस जो है उससे एमिट हुई है. मतलब मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन थी वो न्यूक्लियोलस से जो है वो एमिट हुई, प्रोड्यूस हुई, मीन्स के वो न्यूक्लियोलस में जो है वो प्रेजेंट था. इनिशियली जो है इंजेक्शन के बाद इनिशियली रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियर रीजन में जो है वो नोट की गई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो है उसमें भी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई. फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक जो है वो यूज़ की गई थी एक ओसाइट सेल पर, और ये देखा गया कि न्यूक्लियर आरएनए जो है वो ज़्यादा जो है वो मोर क्विकली जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, और फिर उसके बाद जो है साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो है वो रेडियो एक्टिव जो है वो शो करता है. ऑटो रेडियोग्राफिक जो है वो टेक्निक क्या है कि इस टेक्निक के अंदर जो है वो इसमें जो है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल जो है उस पर उसमें जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और उनकी डिटेक्शन की जाती है, और उसके बाद जो है ये फिर रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है वो इनको जो है वो देखा जाता है, और रेडियोग्राफिक फिल्म को जो है ये फिर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडिएशन जो एमिट करते हैं, वो एमिटेड रेडिएशन जो है वो फोटोग्राफिक जो फिल्म्स हैं या फोटोग्राफिक इमल्शन जो है वो उसको आयोनाइज करती है, और अल्टीमेटली वो जो है फिर डार्क स्पॉट्स की फॉर्म में जो है वो अपेयर होती हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो सब्सटेंस की जिसके लिए ऑटो रेडियोग्राफिक जो है वो यूज़ की गई थी उस सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को जो है वो शो करता है. इन एक्सपेरिमेंट से जो है वो ये कंक्लूड किया गया कि आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करता है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होने के बाद साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. अब ये कंफर्म करने के लिए कि वेदर दिस आरएनए जो है इट इज़ ओनली सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियाई जो है वो सेल से रिमूव किए गए माइक्रोसर्जरी मेथड के थ्रू, और उसमें मतलब सेल्स को कोई भी डैमेज पहुंचाए बगैर जो है वो न्यूक्लियाई को रिमूव किया गया, और मोस्ट केसेस में ये देखा गया कि साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो है जब न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया तो उसमें साइटोप्लाज्मिक आरएनए में जो है वो कोई इंक्रीज़ नहीं हुई, मतलब कि वो नहीं प्रोड्यूस किया गया हुआ. लेकिन कुछ केसेस में जो है वो ये देखा गया कि रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस के बावजूद भी आरएनए की सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रही, मतलब आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता रहा. So now it is considered that most of the RNA is synthesized in the nucleus, but under special cases, circumstances, under special conditions, it is also synthesized in the cytoplasm. अब हम देखते हैं कि ये जो RNA है इसकी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है. 3 types of RNA molecules are found in all cells, and these are responsible for the expression of the genetic information in the form of polypeptide chain during the protein synthesis process. Each type of RNA it
originates or it is produced as a complementary copies of one of the two strands of the DNA segments during the process of transcription। यानी कि RNA जो है वो DNA न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है, तो DNA जो है उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और उसके थ्रू उसकी जो दो हेलिसिस हैं, दो स्ट्रैंड जो है उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट या गाइड के तौर पर एक्ट करती है और उसकी कम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड जो बनती है उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो न्यू जो है मैसेंजर न्यू RNA जो है वो फॉर्म करती है, RNA की टाइप। Therefore, their nucleotide sequence is complementary to the nucleotide sequence of the DNA, which serves as template or guide for their synthesis। यानी कि DNA की जो स्ट्रैंड जो गाइड या टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करती है, तो उसके कम्प्लीमेंट्री बनने वाली जो RNA होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो उसके कम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन उसमें जो है वो जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी RNA की जो स्ट्रैंड बनेगी न्यू स्ट्रैंड, उस कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके अंदर जो है वो अब थायमीन की बजाय जो है वो यूरासिल प्रेजेंट होगा। और ईच टाइप ऑफ RNA विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें साइज भी इनका डिफरेंट हो सकता है, सेडिमेंटेशन बिहेवियर डिफरेंट होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी जो है वो उनके फंक्शन के हिसाब से जो है वो डिफरेंट होती है। तो देर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन द साइज ऑफ द RNA टाइप्स, many different sizes of RNA molecules are produced। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो टाइप्स हैं इनकी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। नंबर 1 मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड और mRNA और इंफॉर्मेशनल RNA, देन ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड और tRNA, and then ribosomal ribonucleic acid which is also known as rRNA। तो let's see now the detail of all these 3 types of RNA molecules। Number 1 ribosomal RNA or RNA, it is the largest of the RNA molecules and it usually forms about 80% of all the RNA in the cell। यानी कि सेल के अंदर 100% RNA है तो उसमें से 80% जो है वो राइबोसोमल RNA पर मुश्तमिल होता है। एंड द मॉलिक्यूल इज composed of thousands of nucleotides consisting of a single strand with the regions in which the base pairing result in double helix projecting on either side। मतलब ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कुछ रीजन्स में जो है बेस पेयरिंग डेवलप होने की वजह से उसमें जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आती है और वो स्ट्रैंड के दोनों साइड पर हो सकती है। एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियोलस एंड इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम्स एंड इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफर RNA। हेयर इज़ द डायग्राम showing the ribosomal RNA molecule which is a single stranded molecule, but due to the base pairing यहाँ पर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हेलिकल जो है वो नज़र आ रही है। ये इस साइड पर है और यहाँ इस साइड पर डेवलप हो गई, इस साइड पर जो है वो बेस पेयरिंग, और इस तरह से ये हेलिकल और नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो RNA मॉलिक्यूल की जो नज़र आ रही है सिंगल। वैसे ये राइबोसोमल RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होता है और इसमें बेस पेयरिंग डेवलपमेंट की वजह से जो है वो साइड लूप्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं जो कि ट्विस्टेड होती हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो इसमें नज़र आती है। देन there is another diagram to show the hypothetical structure of the ribosomal RNA showing helical and non-helical structure of the ribosomal RNA molecule। Now ribosomes जो है इनमें राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। तो दिस राइबोसोमल RNA जो है इट वाज द फर्स्ट RNA टू बी आइडेंटिफाइड, यानी सबसे पहले जो है ये राइबोसोमल RNA आइडेंटिफाई हुआ था। एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द सैटेलाइट DNA प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस and base sequence of the ribosomal RNA it is similar in all the organisms from bacteria to higher plants and the animals। मतलब बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स और एनिमल्स तक सब में जो है वो इसका बेस सीक्वेंस जो है वो सिमिलर होता है। It is found that in the cytoplasm where it is associated with the protein molecules and then when it is associated with the protein molecule these together form the cell organelles which are known as the राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से जो है वो बने होते हैं।
तो राइबोसोम जो है दीज आर द साइट्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पर प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए कोड जो है वो ट्रांसलेट होता है इनटू अ सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोडॉन्स की फॉर्म में, वो यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स पर जो है वो ट्रांसलेट होते हैं, और यहाँ पर जो है वो उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड जो है वो उनसे ज्वाइन करने से जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। राइबोसोम जो है ये एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में लिंक होते हैं by a strand of the messenger RNA, and this complex is known as the polyribosomes or polysomes, which enables the several molecules of the same polypeptide to be produced at the same time। ये एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब राइबोसोम्स का कम्प्लेक्स जो है अटैच होता है तो उसके ऊपर एक ही टाइम पर जो है वो सेम टाइम पर बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड सिमिलर चेन जो है वो बनती हैं। तो नेक्स्ट आइए जो है वो हम डायग्राम देखते हैं जिसमें पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। दिस इज़ वन मैसेंजर आरएनए molecule, and when this messenger RNA molecule it is released from the nucleus to the cytoplasm. In the cytoplasm, ribosomes are present in their smaller and the larger subunits separately, and when this RNA molecule messenger RNA comes, then these two subunits they come close to each other and they join with each other and attach with the messenger RNA, and here according to the codes which is present in this messenger RNA molecule, the transfer RNA molecules are active and they bring the amino acids according to this code present in the messenger RNA, and these amino acids जो है they are linked together through the peptide bonds, and the polypeptide chain जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। एक अमाइनो एसिड के साथ दूसरा अमाइनो एसिड, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ फोर्थ, और इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो है वो बन जाती है according to the codes information which is present in this messenger RNA molecule। तो राइबोसोम जो है वो आगे मूव करता जाता है और उसकी जगह पर जो है वो पीछे मैसेंजर आरएनए जो फ्री होता जाता है पार्ट उसका, उसके साथ एक नया राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाता है, और इस तरह से नेक्स्ट वन जो है वो आगे ग्रो करता जाता है। जब अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो सेपरेट हो जाती है, नेक्स्ट अमाइनो एसिड नहीं आता है तो वो सेपरेट होकर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सेपरेट हो जाती है, और उससे लास्ट वाला जो राइबोसोम है वो भी फिर मैसेंजर आरएनए से सेपरेट होकर अगेन इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू इट्स लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स एक टाइम पर अटैच होते हैं टू फॉर्म द सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट द सेम टाइम, दिस कम्प्लेक्स इज नोन एज द पॉलीसोम। इसको जो है वो पॉलीसोम कहा जाता है। तो इस तरह से राइबोसोम जो है उसके ऊपर प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस होती है। Then another type of RNA is the messenger RNA or informational RNA is also known mRNA, and messenger RNA जो है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होता है from the coded instructions in the DNA, and then it passes into the cytoplasm where it becomes associated with the ribosome, जो भी हमने ऊपर डायग्राम में देखा। It carries the chemical information from the DNA of the gene to the ribosomes for the protein synthesis, यानी इसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन कोडॉन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन के सिंथेसिस जो है वो उसके लिए इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए जो है उनकी जो लेंथ है मीन्स कि उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो 75 से लेकर 3000 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो लॉन्ग हो सकती है, और इसमें जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होती है, इट इज़ नॉट फोल्डेड इन एनी स्पेशल वे, और ये लॉन्ग लीनियर जो है वो मॉलिक्यूल होता है मैसेंजर आरएनए के। मैसेंजर आरएनए जो है ये टोटल आरएनए का जो है वो तकरीबन 3 to 5% जो है वो मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल होता है, और जो है इसमें जो है वो ये जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है, और इनकी प्रेजेंस में जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का। और जब स्टार्ट होता है तो इसमें जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द डीएनए मॉलिक्यूल, और वो डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है वो अनवाइंड होती है, और उसके
अकॉर्डिंग एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड कहलाती है, या टेम्पलेट या जो है वो गाइड स्ट्रैंड भी कहलाती है। और उसके कम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग जो है वो उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो आरएनए की वो उसके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाती हैं, और जो है वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो जाती है कम्प्लीमेंट्री ऑफ द डीएनए ऑफ द ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड। तो इसमें जो है वो बेस सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए जो न्यू स्ट्रैंड बनती है उसका वो जो है वो कम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड भी कहलाती है। और इसमें जो है वो ईच एडेनिन ऑफ द डीएनए जो है वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में जो है उसके अगेंस्ट जो है वो थायमीन के बजाय यूरासिल अटैच होगा, और थायमीन के साथ जो है वो एडेनिन, और गवानीन के साथ साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ जो है वो गवानीन अटैच होगा, और इस तरह से कम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगी। अब इस डायग्राम में जो है वो हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कि दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, और इसमें जो है वो एक स्ट्रैंड जो है वो कॉपी के तौर पर जो एक्ट करेगी, जो टेम्पलेट के तौर पर गाइड स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करेगी वो ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड होती है, और दूसरी जो है वो नॉन ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड कहलाती है। अब इसमें जो है वो प्रोसेस जो है इसमें ट्रांसक्रिप्शन का ये जो है वो इस एंड से जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, और ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो स्टार्ट होकर अब ये यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये यहाँ से जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो स्टार्ट करेगा, और ये स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड होगी, और ये स्ट्रैंड जो है जो ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करेगी इसके साथ इसके अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री बेसिस जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच होती जाएंगी, और जो है वो स्ट्रैंड आगे जो है वो अटैच होने के बाद जो है बनने के बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे मूव करता जाएगा, और इसको मतलब इसकी अनवाइंडिंग होगी, और उसके साथ न्यू नाइट्रोजन बेसिस जो है वो आरएनए की वो उसके साथ जो है वो अटैच होती जाएंगी। ये साइटोसिन जो है वो नाइट्रोजन बेस है, फिर ये जो है वो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है, ये जो है गवानीन डाइफॉस्फेट है, इस तरह से ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर आकर जो है उसके साथ जो है वन बाय वन अटैच होते जाते हैं, और जैसे ही एंजाइम जो है आगे मूव करता जाता है ये स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो जाती है, तो ये इससे सेपरेट जब होना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद ये जो ओरिजिनल दोनों जो स्ट्रैंड्स डीएनए की ट्रांसक्राइबिंग या नॉन ट्रांसक्राइबिंग ये दोबारा से जो है वो ज्वाइन करना शुरू कर देती हैं, ये रीजॉइन करके दोबारा से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो है वो आती जाती हैं, और ये जो है वो स्ट्रैंड जो है वो मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड आगे जो है वो बनती जाती है। और जब ये कंप्लीट हो जाती है दिस मैसेंजर आरएनए जो है इट इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द प्रोटीन, या जीन के अंदर जितनी कोडॉन प्रेजेंट है उस जीन के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रेजेंट है उसके अंदर जितनी इसकी लेंथ जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है या पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ के जो है वो इक्वल होती है, उसके मतलब उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका साइज़ होता है, and the length of these may be from 75 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स, और इसमें कोई स्पेशल जो है वो फोल्डेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है हेलिकल फॉर्म में। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए which is produced after transcription process from the DNA molecule, it contains the nucleotides, and each group of 3 nucleotides which acts as a code for one amino acid. This is known as the codons. These three nucleotides constitute one codon. These 3 nucleotides they constitute act as code for another amino acid, और ये इस तरह से कोड्स की फॉर्म में कोडॉन्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो फिर राइबोसोम्स के ऊपर जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं वो अमाइनो एसिड जो है पिक करते हैं और इसके साथ जो है वो अटैच करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ये जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो मैकेनिज़्म था। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। नो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये टोटल आरएनए का जो है वो तकरीबन 10 to 20% जो है वो आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
और ये जो है वो न्यूक्लियो आरएनए मॉलिक्यूल की जो है वो स्मॉलेस्ट जो है वो ग्रुप है, क्लास है, जिसके अंदर जो है वो ऑल सेल जो है उनके अंदर तकरीबन एटलीस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड। और जो ट्रांसफ़र आरएनए हैं उनकी जो लेंथ है, उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर प्रेजेंट होता है, ये जो है वो 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो हो सकता है। मीन के इसके अंदर जो लेंथ है न्यूक्लियो मॉलिक्यूल की वो भी स्मॉलर होती है देन द मैसेंजर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए। This transfer RNA, it carries the amino acid to the ribosomes during the protein synthesis in translation process। यानी जब DNA मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से रिलीज होके जो है जब आता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस के बाद तो वो मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम के साथ जब अटैच होता है तो उसके बाद जो है फिर ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एक्टिव होता है और वो अकॉर्डिंग टू द कोड विच इज़ प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए अमाइनो एसिड को पिक करता है और राइबोसोम तक लेके आता है और वहाँ पर जो है वो फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना शुरू हो जाती है, फिर प्रोटीन बनती है। Each organism synthesizes a number of different transfer RNAs, each in multiple copies, इनकी बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो उसकी बनती हैं। और इसमें पहले ही हमने पढ़ा कि 20 different kinds of transfer RNA molecules are present and all transfer RNA molecule they are very similar in shape. The structure of the transfer RNA molecule is nearly similar in बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। मीन के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन एक जैसा होता है। अब ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मॉडल जो हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि इनका स्ट्रक्चर इन मॉडल से जो है वो रिजेंबल करता है, इस तरह का जो है वो हो सकता है। तो वन जो है वो मॉडल इज़ नोन एज द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए एंड क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए is that model in which it is explained that the transfer RNA molecule resembles with the shape of the clover leaves। clover leaves जो हैं ये क्या होते हैं कि ये फैबेसी फैमिली जो है उसके अंदर जीनस जो ट्राइफोलियम है उसमें जो लीव्स है वो कंपाउंड लीव्स होते हैं और उन कंपाउंड लीव्स में जो है वो 3 लीफलेट्स होती हैं और ये उसके मतलब पिटियोल के एंड पर जो है वो 3 लीफलेट्स जो है वो इस तरह से एक टिप पर और एपिक्स पर और 2 जो है वो साइड पर उसके साथ ही प्रेजेंट होती हैं। तो 3 साइडेड जो स्ट्रक्चर है, 3 लूप्स वाली स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आती है 3 लीफलेट्स की वजह से। तो इस वजह से क्लोवर के लीफ से मिलते होने की वजह से इसका मॉडल जो है वो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए का नाम जो है वो दिया गया है। अब क्लोवर लीफ मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है कि ट्रांसफ़र आरएनए का जो मॉलिक्यूल है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो होती है जिसके अंदर जो है वो उसकी लेंथ और जो है वो विड्थ उसकी जो है वो उसको शो करता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसको शो करता है और इसमें जो है वो इसके along the length of the transfer RNA molecule डिफरेंट रीजन जो है वो उसमें बेस पेयरिंग डेवलप हो जाती है और बेस पेयरिंग की वजह से वहाँ पर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आती है और जो है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स स्टेम बनते हैं, स्टेम लाइक रीजन्स बनते हैं, डेवलप होते हैं और उन स्टेम से सेंट्रल वाला जो पीछे वाला जो रीजन है जहाँ पर अनपेयरिंग होती है वो जो है लूप की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है वो मेन 3 लूप्स जो हैं वो लार्ज साइज़ के जो हैं वो नज़र आते हैं मेजर, जिसकी वजह से इसको क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी जो है वो कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर द ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स और द पार्ट्स। इसमें फर्स्ट जो है वो इसका जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज द acceptor arm or acceptor A stem। This is the region which is formed by the base pairing of the ends of the transfer RNA molecule at the 5' end and at the 3' end। तो इसमें इस रीजन में इस ए आर्म जो है इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 7 बेस पेयर जो है प्रेजेंट होती हैं, ज्वाइनिंग जिनकी होती है, बेस पेयरिंग बनती है जिससे ये स्टेम जो है वो लाइक पार्ट बनता है
और इसके 5 प्राइम एंड पर जो है वो गवानीन बेस प्रेजेंट होती है, और इसके 3 प्राइम एंड पर जो है वो जो कि 5 से थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और वहाँ पर लास्ट जो सीक्वेंस है वो CCA जो है वो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेसिस। नाउ एक्सेप्टर आर्म और स्टेम इज़ द आर्म टू विच द अमाइनो एसिड्स आर अटैच्ड। इसके साथ जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो आके अटैच होता है, जिसको फिर ये पिक करके जो है वो मैसेंजर RNA तक जो है वो लेकर जाता है। देन ऑपोजिट टू दिस आर्म, इसका जो है वो एक और आर्म जो है प्रेजेंट होता है, जिसको एंटीकोडॉन स्टेम कहा जाता है, और या एंटीकोडॉन लूप, जो अनपेड एरिया है उसको एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। और ये जो स्टेम रीजन जहाँ पर बेस पेयरिंग डेवलप होती है इन बिटवीन ऑलमोस्ट 5 बेस पेयर जो हैं दीज आर जॉइंट, और ये जो है वो एंटीकोडॉन स्टेम कहलाता है। और एंटीकोडॉन स्टेम जो है वो उसकी लूप जो है उसके ऊपर एंटीकोडॉन लूप इसको कहते हैं। क्यों इसको एंटीकोडॉन लूप कहते हैं? बिकॉज हेयर द सीक्वेंस ऑफ 3 nitrogen bases is present which is complementary to the sequence of the मैसेंजर RNA कोडॉन्स। यानी कि मैसेंजर RNA में जो हमने पढ़ा कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है जिसको हम कोडॉन कहते हैं, उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैसेंजर RNA में जो है वो कोडॉन जो है वो सपोज करें कि GCC है, तो यहाँ पर उसका एंटीकोडॉन जो है कंप्लीमेंट्री जो बेसिस होंगी वो CGG जो है वो यहाँ पर होंगी। तो ये जो है इस एंड के थ्रू ट्रांसफ़र RNA जो है वो मैसेंजर RNA के साथ अटैच होता है, उसके कोडॉन के साथ। इसका एंटीकोडॉन लूप वाला एरिया जो है ये उसके साथ अटैच होता है। जब ये मैसेंजर अमाइनो एसिड जो है वो इसके एक्सेप्टर एंड पर अटैच हो जाता है, तो इसको पिक करता है और मैसेंजर RNA तक ले जाता है। तो वहाँ पर जाके जो है वो कोडॉन को जो है वो रिकग्नाइज करता है और उसके साथ जो है अटैच हो जाता है एंटीकोडॉन लूप के थ्रू। इसके बाद एक और जो मेजर लूप है प्रेजेंट होती है इसमें एक साइड पर, दैट इज़ नोन एज द डी स्टेम और डी लूप। डी स्टेम इज़ द रीजन वेयर बेस पेयरिंग जो है वो तकरीबन जो है वो इसमें 3 to 4 या 5 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बेस पेयरिंग होती है जो स्टेम रीजन फॉर्म करता है। और जो अनपेड एरिया है जो लूप है, इसमें जो है वो एक अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है जो डाईहाइड्रोयूरासिल जो है वो बेस होती है, जिसकी वजह से इसको डी लूप का नाम भी जो है वो दिया जाता है। इसके बाद डी लूप के ऑपोजिट जो है वो टी लूप प्रेजेंट होती है। और टी लूप जो है इसमें जो है वो स्टेम रीजन, जो टी स्टेम रीजन बनता है, इसमें भी तकरीबन जो है वो 3 to 5 जो है वो बेस पेयर्स के जॉइंट से जो है बनता है। और टी लूप जो है इसमें जो है वो आफ्टर द टी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसका नाम जो है इसको दिया जाता है। फिर इसके बाद टी लूप और एंटीकोडॉन लूप जो है उसके दरमियान में सेंटर में जो है वो एक और एक्स्ट्रा लूप प्रेजेंट होती है, जिसको वेरिएबल लूप भी जो है वो कहा जाता है। और इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 to 5 जो है वो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती हैं, बट इन सम केसेस जो है वो 13 to 21 नाइट्रोजन बेसिस भी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। और ये लॉन्ग जो है वो लूप होती है। तो ये जो है वो क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र RNA था। और इसमें जो है नेक्स्ट जो मॉडल है इसका वो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र RNA। और उसमें जो है वो ये जो मॉडल है, ये जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसकी शेप जो है वो L शेप होती है। और ये कैसे डिटरमिन की गई कि जो 1974 में बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ये जानते थे कि ट्रांसफ़र RNA जो है वो इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो उसके बाद फिर उन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो उसके थ्रू इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन किया। और एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो मेथड है कि जिसमें जो है वो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पर जो है वो
किसी भी जो है वो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो उसको डिटरमिन किया जा सकता है उस मेथड के थ्रू। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये इस मॉडल जो है उसमें ये रिवील किया गया, ये शो किया गया कि ये मॉडल जो है वो एल शेप स्ट्रक्चर है और इसके जो है वो एक एंड पर जो है वो प्रेजेंट है एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन स्टेम, ये जो है वो इसके एल के एक एंड पर जो है वो एंटीकोडॉन लूप और जो है वो एंटीकोडॉन स्टेम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें जो है वो उसमें वेरिएबल लूप प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर दूसरा एंड जो है वहाँ पर जो है वो एक्सेप्टर स्टेम या जो है वो एक्सेप्टर आर्म जो है वो प्रेजेंट है, जहाँ पर जो है वो अमाइनो एसिड अटैच होगा। और उसके बाद ये जो इसमें एक्सेप्टर स्टेम और जो है वो टी स्टेम प्रेजेंट है एक एंड पर, दूसरे एंड पर। और उसके बाद इसका जो कॉर्नर रीजन है एल का, उसमें जो है वो टी लूप प्रेजेंट है और डी लूप जो है वो प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए का जो आरएनए का ये जो ट्रांसफ़र आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेम एरियाज जो हैं वो डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनएस के अंदर रिलेटिवली जो है वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं कि एंटीकोडॉन एक्सेप्टर जो है वो स्टेम है, एंटीकोडॉन स्टेम है और जो है वो टी स्टेम है या डी स्टेम है। लेकिन जो लूप एरियाज़ हैं वो जो है वो डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर जो है वेरिएबल हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर जो स्टेम फॉर्मिंग जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, वो जो है वो एक कांस्टेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन लूप जो है वो वेरिएबिलिटी जो है वो शो करते हैं और इसी की वजह से हर ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो उसकी टाइप को जो है रिकग्नाइज़ किया जा सकता है इनकी बेसिस पर। और जो है इसमें लूप शेप्स जो है उनको डिटरमिन करने के लिए जो है वो एंजाइम जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। और इसमें ये देखा गया है कि लूप शेप्स जो हैं दिस में बी आइडेंटिफाइड, दिस में बी रिकग्नाइज्ड बाय यूजिंग द स्पेसिफिक एंजाइम विच इज़ नोन एज अमाइनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। और ये जो एंजाइम है ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जो है वो अटैच करता है या ऐड करता है। तो ये जो है वो आरएनए का स्ट्रक्चर है जो आज हमने डिस्कस किया है, जिसमें उसके जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं।